السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا اور امید یہی ہے آپ جہاں کہیں ہوں خوش ہوں، زندگی مزے اور سکون سے گزر رہی ہو۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور یہ ہے صبح کا وقت، اور جو بچے پراٹھا چھوڑ گئے تھے میں توڑ کے لے آئی پرندوں کے لیے، اور چاول بنائے تھے تو وہ جو کڑھائی میں نیچے چاول بچ گئے تھے وہ میں نے رات بھر بھگو دیے، صبح میں نے انہیں چھلنی میں ڈالا، جو چھان کے انہیں میں اوپر لے آئی، اور اس طرح یہ ضائع نہیں ہوتے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، مطلب زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو رزق بچا سکوں بچا لوں، ضائع نہ کروں۔ اور اسی یہ دیکھیں یہ مجھے دیکھ کے نا یہ اٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی میں غائب جاؤں گی ادھر ادھر ہوں گی تو یہ آ کے سکھا جائیں گی۔ دیکھیں میں دروازہ بند کروں گی نا تو یہ پھر آ کے بیٹھیں گے، اور جیسے دروازہ کھولوں گی تو یہ جو ہے نا اڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جی جو میں نے کپڑے دھوئے تھے کل ان کی میں استری کروں گی، اور جی استری کا کام اور کپڑے دھونے کا کام آپ کے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ریگولر، جیسے میرے یہاں ہوتا ہے؟ انتہائی بورنگ کام ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، اور میں کرتی ہوں۔ اور سچ ایک بات اور بتاؤں، آج جو میں نے سوچا تھا میں ایک بات شیئر کروں گی کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ میں جب آتا ہوں بات کرنے کے لیے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھئی شاہ صاحب آپ کی وائس میں تاثیر بڑی ہے، آپ کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں وضو کر کے آتا ہوں۔ مجھے نا ان کی بات بڑی اچھی لگی، اور اتنی اچھی لگی تو میں نے سوچا یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ پھر میں نے سوچا یہ گھر میں جب ہم رہتے ہیں اور آپ ہاؤس وائف ہو تو ظاہر ہے انسان ایک طرح کے ماحول میں رہ کر بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑی اچھی لگی، بڑا میں موٹیویٹ ہوئی، اور میں نے سوچا یہ ظاہر ہے یہ میرا روز کا کام ہے، ریگولر کپڑے دھلتے ہیں، استری ہوتے ہیں، تو میں بھی اسے عبادت سمجھ سے کروں گی۔ ظاہر ہے مرد کا کام ہوتا ہے باہر جا کے کما کے لانا، عورت کا ذمہ داری ہوتی ہے گھر سنبھالنا، اگر سمجھیں ویسے اگر آپ سب کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اپنی اپنی ہابیز ہوتی ہیں۔ بہرحال مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، اور جب ان کی یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے تو پھر مجھے کام کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اور استری کرنے کے بعد میں کرنے لگی ہوں صفائی، اور صفائی کرتے ہوئے اگر آپ vlogging کر رہے ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیمرے کو سنبھالنا، مطلب کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو کیمرہ لیے آپ کے ساتھ میں، تو ریکارڈنگ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اینی وے کام تو وہ کام ہی کیا جس میں مشکلات نہ ہوں۔ تو جی یہاں میں کرنے لگی ہوں صفائی، اور یہ وقت ہوا ہے 11 تقریباً 11 ساڑھے 11 کا، اور جی مطلب روزانہ صفائی ہوتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے اتنا کچرا گھر میں آ جاتا ہے، اور اتنا مطلب کچرا نکل رہا ہوتا ہے، اتنی زیادہ مٹی نکلی تھی گھر میں، مطلب بس کہ اللہ دے اور بندہ لے والی بات ہے۔ تو جہاں پوچھا میں دیکھوں گی، اگر ہوا تو لگاؤں گی، ہمت ہوئی تو لگا لوں گی ورنہ نہیں لگاؤں گی۔ تو ماشاءاللہ گھر بھی مطلب اوپر نیچے کا ڈبل ہے، تو سارے گھر کو صفائی کرتے کرتے مطلب میں جھاڑو لگاتے میں اتنا تھک جاتی ہوں، اور جو ہے اتنی مجھے تھکن ہو جاتی ہے کہ پھر جھاڑو لگتی ہے تو پھر پوچھا نہیں لگ پاتا، یا پھر نیچے کا پورشن ہوتا ہے تو اوپر کا چھوڑ دیتی ہوں، اور اگر اوپر کا پورشن مطلب کر لوں تو پھر نیچے کا رہ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی کتنا سارا گھر میں سے کچرا نکلا ہے، اسے میں بھر لوں گی اور پھر جو ہے اسے جو ہے پھینکوا دوں گی۔ باقی سمیٹ میں نے سارا صبح ہی لیا تھا، اور وائس اوور کرتے ہوئے پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی جمائیاں آ رہی ہیں، حالانکہ آنی تو نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں جی کمرہ میں نے سارا سمیٹ لیا تھا، کپڑے میں نے سارے استری کر کے باہر ہی ہینگ کر دیے تھے، کہ میں نے شام میں جو ہے تھوڑے سے نم سے تھے کپڑے، تو مجھے تھا باہر ہینگ کر دیتی ہوں استری کر کے، جب یہ اچھے سے وہ ہو جائیں گے خشک پھر میں جو ہے انہیں الماری کے اندر رکھ دوں گی۔ اور جی یہ دوپہر کا وقت ہے، یہاں میں گوندنے لگی ہوں آٹا، کیونکہ کل چاول بنائے تھے، سالن کیا تھا؟
सच साग साग के साथ चावल बनाए थे, और मतलब चावल भी मजबूरी में बनाने पड़े क्योंकि लाइट जा चुकी थी और लाइट का कोई पता था नहीं। तो ज़ाहिर है बच्चों ने दोपहर में तो फिर चावल नहीं खाने थे, और चावल भी एक ही वक्त में अच्छे लगते हैं, दूसरे वक्त में तो रोज़ रोज़ हमारे यहाँ रेगुलर चावल नहीं खाए जाते। तो ये 12 बजे का तकरीबन वक्त है, और मैं आटा गूंद के रख दूंगी। फिर ये होगा कि जैसे ही बच्चे आएंगे, अगर वो कहेंगे कि मम्मा रोटी खानी है, तो मतलब मैं उन्हें रोटी बना दूंगी। अच्छा ऐसा भी हुआ मैं रोटी बना के रख दूँ ना, तो बच्चे कहते हैं मैं खाना नहीं खाना, हमें भूख ही नहीं है। और जब बना के ना रखो ना, फिर वो इतना शोर मचाते हैं, हाय मम्मा भूख लग रही है, हाय मम्मा भूख लग रही है। तो आपके के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? आप भी मुझे बताइएगा। और यहाँ आटा गूंद गया, और आटा गूंदने के बाद मैं जी इस पे ढकूंगी रुमाल गीला करके निचोड़ के। इससे जो है आटा बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा रहता है, और ऊपर वो जो पापड़ी सी होती है वो नहीं जमती। और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में क्या, बल्कि अब कुछ देर तो बाहर ही रखूंगी, क्योंकि घंटा 1.5 घंटे तक बच्चे आ जाएंगे। रोटी फिर ये शाम तक के लिए भी हो जाएगा। और आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, मेरा लेटने का दिल था, तो मैंने सोचा चलो इसके किचन के फर्श पे तेज़ाब लगा लेती हूँ। और किचन के जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, किचन बहुत गंदा होता है। और हालांकि रेगुलर सर्फ से फर्श की पोछा लगाया जाता है, ब्लीच सर्फ हर चीज़ से मतलब मैं पोछा निकालती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे किचन पे जब तक मैं तेज़ाब ना डालूँ ना फर्श पे, ये देखें मतलब इतनी चिकनाहट, इतना गंदा हो जाता है, या ज़्यादा हो सकता है पानी गिरता हो इस वजह से। तो मैं ये करती हूँ कि हर 8 दिन में तो नहीं, 15 दिन बाद जो है मतलब एक प्याली तेज़ाब लेके, मतलब उसमें 2-3 पानी डाल के, मतलब आप बोतल में थोड़ा सा तेज़ाब पाव जितना लेके, फिर पूरी बोतल में पानी भर के और वो मिला के ना उसे फ़र्श पे फैला देती हूँ। तो इससे जो है ना, और तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट उसे छोड़ दूँ, तो और उसके बाद धो लें सादा पानी से, इतना अच्छा फ़र्श नीट हो जाता है और चमक आ जाती है। डायरेक्ट तेज़ाब नहीं डालती, क्योंकि डायरेक्ट तेज़ाब डालने से ना फ़र्श ख़राब हो जाता है। और लाल पानी भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाल पानी जो है मैं वॉशरूम की टाइलें धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें जी, फ़र्श कितना नीट और क्लीन हो गया, और इतना कचरा निकला था वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और मतलब किचन जब साफ़ हो गया ना, तो मुझे सुकून हो गया, और मतलब मज़ा आ गया। सुकून क्या हो गया, मज़ा आ गया। अच्छा जी, ये है दोपहर का वक्त, दोपहर का नहीं बल्कि दोपहर ही कहेंगे। तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 3:45। हाँ जी, 3:45 का वक्त है। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़र्श वगैरह साफ़ करके मैं लेट गई थी। फिर मैं उठी तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई, और ग्रीन टी पीने से तबीयत बड़ी मेरी अच्छी फ़्रेश हो जाती है। जो नींद आ रही होती है, नींद नहीं आती। और सब्ज़ी मंगा ली थी बच्चों से मैंने, उनके मस्जिद जाने से पहले। तो सब्ज़ी में आई थी आलू गोभी, तो आलू गोभी मैंने कटिंग की। और आज खाने में आलू गोभी बनाऊंगी, इसमें कुछ थोड़ा सा चिकन शामिल करूंगी ताकि इसको जायका अच्छा हो जाए, और बच्चे ना ज़रा चिकन हो ना सब्ज़ी में तो शौक से खा लेते हैं। वरना वो ना सब्ज़ी को देख के वो कहते हैं या मम्मा शिमला बनाई है, मम्मा गोभी बनाई है। वो खा लेते हैं, लेकिन ना मतलब खुश नहीं होते। और चिकन से बस थोड़ी सी लज्जत आ जाती है, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे करते हैं। और जी यहाँ मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में, एक बड़े साइज़ का प्याज डाला, और इसे मैं करने लगी हूँ लाल। जब ये लाल हो जाएगा, तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। अच्छा मैंने पता है क्या किया था, मैंने सारा मसाला नहीं बनाया था, मैंने गोभी कटिंग करके भिगो दी थी, और चिकन साफ़ कर लिया था। फिर मैंने आके चूल्हा जला के उसमें मैंने तेल डाला, प्याज डाली, प्याज को लाल किया, चिकन डाला, चिकन धुला हुआ रखा था और गोभी धुली हुई। अब उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी, फिर मैं मसाला बनाऊँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं खाने की तैयारी चूल्हा ऑन करके प्याज लाल करके सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो उसमें डालकर फिर मैं मतलब अब मैं ये खड़े होकर पागलों की तरह से देखना नहीं होगा।
यहाँ मैंने उसे ढक कर मैंने लहसुन छीला, अदरक छीली, हरी मिर्चें ली, और अब मैंने पीस लूँगी। आलू कटिंग होने वाले थे, आलू मैंने काटे, काट के वो मैंने रखे। तब तक जो है ये इसकी भुनाई हो गई थी, और इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया था कि मतलब ये चिकन का और गोभी का अपना ही पानी था। इसे हल्की आँच पे मैंने रखा था भुनने के लिए कि चिकन भुन जाए और गोभी जो है ना वो थोड़ी-सी नरम हो जाए। जब ये भुन गए फिर उसमें मैंने जो है मतलब ये मैंने टमाटर भी काट लिए थे साथ-साथ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची पीस ली थी, टमाटर डाले, आलू डाल दिए, और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली थी, और इसको चला के मैंने जो है इसको फिर रख दिया था इतनी देर के लिए कि आलू गल जाएँ। साथ-साथ जी मैं बनाने लगी थी फलियाँ, कल नहीं मैंने परसों मँगवाई थी। जिस दिन साग बनाया था उस दिन फिर साग के साथ तो मैंने फलियाँ नहीं बनाई, लेकिन ये मैंने भिगो के रख दूँगी सादा पानी में। तो अभी तो मतलब 4:30 ही कुछ हुए हैं। ज़ाहिर है खाना तो 8 बजे तक खाएँगे इशा की नमाज़ पढ़ के, तब तक ये बहुत अच्छी सी नरम हो जाएँगी। और जी ये देखें आलू गल गए। जब आलू गल जाएंगे अच्छे से तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली थी, भुना कुटा धनिया, भुना कटा ज़ीरा और कसूरी मेथी, गरम मसाला डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया और चूल्हा बंद कर दिया था। यहाँ जी मैंने ये दूध बॉयल करा है, इसकी मैं दही जमाऊंगी। ये उबला हुआ दूध था, मैंने इसको नीम गरम करके इसमें ये आधा चम्मच दही डाली, और अब बस उठा के मैं इसे ढक के कैबिनेट में नीचे रख दूँगी। रात में इंशाल्लाह जो है ये दही भी जम जाएगी। अच्छा, जो आलू आए थे ना गोभी में, उसमें से मैंने 3-4 आलू बचा लिए थे, वो ज़्यादा थे। उनमें से मैंने कटिंग करके आलू बॉयल कर लिए थे और फलियों को निचोड़ लिया। ये दही है, और दही को मैंने फेंट के फलियों में दही डाली, आलू और फलियों में दही डाली। इसमें मैं ये सलाद डाल रही हूँ, टमाटर, खीरा, प्याज मैंने नहीं डाली थी, देर में डाली थी क्योंकि प्याज में बड़ी कड़वी सी स्मेल आ रही थी। हालांकि मैंने इतना वॉश भी किया था प्याज को, फिर भी ना मतलब उसकी स्मेल नहीं जा रही थी। फिर मैंने कहा इसे मैं दोबारा धो के फिर डालूंगी, और इसमें मैंने चाट मसाला डाला था, कुटी हुई मिर्चें डाली थी। और जी ये रात का वक्त है, रात मीन्स तकरीबन 8:30 का वक्त है। ईमान के पापा ऑफिस से आ गए थे और यहाँ हम खाने लगे हैं खाना। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। और खाना बहुत मज़े का था। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को भी इसी तरीके से हरा भरा और कुशादा रखे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना, बड़ों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका बहुत ख़याल रखिएगा।